Good morning, kids. How are you all? Hope you all are fine. So, children, in ASL, today we will start our new chapter, that is chapter number 11, and the name of the chapter is About India. So, children, before starting this chapter, let us discuss few things which is related to India. So, the first question is, what is the name of our country? Again, I'll repeat, what is the name of our country? So tell me children, I hope you all know very well what is the name of our country. आप सबको पता होगा बहुत अच्छे से कि हम किस देश में रहते हैं और हमारे देश का क्या नाम है. So the answer is India. India is the country where we live. India वो country है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, रहते हैं. So few things you all must know, that is what is our national fruit. So our national fruit is mango. Next, national flower. National flower is lotus. Animal, tell me, what is our national animal? National animal is tiger. And river, Ganga. Tree, banyan tree. Except this, few more things that you already know, that is how many states in our country. In our country there is, that is 28 states. How many union territories are there? There are 9 union territories. When we celebrate our Independence Day, when we celebrate our Republic Day, when we celebrate our Gandhi Jayanti, these are the few things which we already know. I hope you also know this. Now come to our chapter. Today we will learn few more things which is related to our country, about India. So let us start this chapter. In this chapter, first of all of you open your books, your ASL book, page number 25, chapter number 11. So the first question is, name the neighboring countries of India. What is the meaning of neighboring countries? The meaning of neighboring countries, पड़ोसी देश. वो देश हमें बताने हैं जो जस्ट हमारी जो कंट्री है इंडिया के आसपास के जो देश है. पड़ोस का मतलब आप सब समझते होंगे, जो जस्ट सपोज हमारा घर है, हमारे घर के अगल बगल जो भी घर होते हैं उन्हें हम अपना पड़ोस कहते हैं, हमारे पड़ोस के घर कहते हैं. वैसे ही हमारी कंट्री इंडिया, उस कंट्री के आसपास के जो भी कंट्रीज हैं उन्हें हम पड़ोसी देश कहेंगे. इन इंग्लिश दैट इज नेबरिंग कंट्रीज. सो नेम द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया. सो द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया आर म्यांमार, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, China and Sri Lanka. There is 7 neighboring countries. Once again, first one Myanmar, Nepal, Bhutan, Bangladesh, Pakistan, China and last Sri Lanka. That is 7. Now come to the next question, that is name the desert in India. वो डेजर्ट का नाम बताना है जो हमारी कंट्री इंडिया में है. सो दैट इज थार डेजर्ट. अंडरस्टैंड. नाउ कम टू द थर्ड. नेम द वुमन फ्रीडम फाइटर हु वाज आल्सो कॉल्ड द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया. उस स्वतंत्रता सेनानी जो फीमेल है, मीन्स औरत है, उसका नाम बताना है जिसको हम एक और नाम से जानते हैं, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया. सो हु इज शी? Sarojini Naidu was called the Nightingale of India. Sarojini Naidu एक फ्रीडम फाइटर थी जो एक फीमेल है. वो है, उन्हें हम दूसरे नाम से जानते हैं जो है नाइटिंगेल ऑफ इंडिया. Who is she? She is Sarojini Naidu. Name 2 famous scientists of India. आपको 2 साइंटिस्ट का नाम बताना है जो फेमस हैं और वो कहाँ के हैं, हमारी कंट्री इंडिया के. So they are Dr. C.V. Raman and H.J. Bhabha. They both are the scientists. Next, where is the राष्ट्रपति भवन? राष्ट्रपति भवन कहाँ है? राष्ट्रपति भवन मीन्स प्रेसिडेंट्स हाउस. जो हमारे देश के प्रेसिडेंट हैं उनका जो घर है वो कहाँ पे है? इट इज इन न्यू दिल्ली. न्यू दिल्ली में है वो. ओके. So the next question is, who lives in the Rashtrapati Bhavan?
I hope children you all know what is the meaning of Rashtrapati. Rashtrapati means president. So who lives in the Rashtrapati Bhavan? This is obvious कि राष्ट्रपति नाम है तो उसमें कौन रहता होगा? Obviously राष्ट्रपति means हमारे president रहते होंगे. So the president of India lives in the Rashtrapati Bhavan. Next question, where is the Taj Mahal located? ताज महल कहाँ पे है? So it is located in Agra. I hope आप में से बहुत सारे बच्चे ताजमहल देखने गए भी होंगे और वो कहाँ पे है? It is in Agra. Okay. Now come to the next page, which is on page number 26. Next question, which city in India still has trams? वो कौन सी सिटी है हमारे इंडिया में जहाँ पे अभी भी ट्रैम्स होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रैम्स. ट्रैम जो बच्चे दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज कोलकाता. जो बच्चे कोलकाता गए होंगे या जिन्होंने ट्रैम्स के बारे में जाना होगा, ट्रैम्स मीन्स वो होता है जो ट्रेन होती है, बट वो ट्रेन कहाँ चलती है? आपकी पटरियों पे, मीन्स जो रेलवे जो लाइन होती है उस पे ना चल के रोड एक होती है, रोड पे वो चलती है. दिस टाइप वो जो ट्रेन्स होती हैं उसको हम ट्रैम्स कहते हैं. वो पुराने जमाने में बहुत पहले के टाइम में चलती थी, यूज होती थी. तो वो अभी भी हमारे इंडिया में कोलकाता में ट्रैम्स चलते हैं, यूज होते हैं. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया? सो द नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया इज हिंदी. हिंदी इज आवर नेशनल लैंग्वेज. विच इज द लिंक लैंग्वेज ऑफ इंडिया? विच इज द लिंक लैंग्वेज जो हम हिंदी के साथ और हमारे एक्सेप्ट की जाती है हमारे इंडिया में बोलने के लिए? दैट इज इट इज इंग्लिश. अंडरस्टैंड, दिस इज ऑल्सो इंटरनेशनल लैंग्वेज और ग्लोबल लैंग्वेज. वट आर द अदर लैंग्वेजेस स्पोकन इन आवर कंट्री? और कौन सी लैंग्वेजेस हैं हिंदी और इंग्लिश के अलावा जो हमारी कंट्रीज में मोस्टली बोले जाते हैं, ज्यादातर बोले जाते हैं? अदर लैंग्वेजेस स्पोकन हियर आर उर्दू, बंगाली, भोजपुरी, डोगरी, मलयालम, तेलुगु, मराठी, पंजाबी, etc. इन विच स्टेट इज तेलुगु स्पोकन? वो कौन सा स्टेट है जहाँ पे तेलुगु लैंग्वेज बोली जाती है? सो द पीपल ऑफ आंध्र प्रदेश स्पीक तेलुगु. आंध्र प्रदेश एक स्टेट है हमारी कंट्री में, वहाँ पे हम तेलुगु लैंग्वेज बोलते हैं. वेयर इज मराठी स्पोकन? कहाँ के लोग मराठी लैंग्वेज बोलते हैं? सो मराठी इज स्पोकन इन महाराष्ट्र. महाराष्ट्र में मराठी लैंग्वेज बोली जाती है. नेम सम पोर्ट्स ऑफ इंडिया. कुछ पोर्ट्स के नाम बताओ जो इंडिया में है. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोर्ट्स? पोर्ट्स होते हैं जहाँ पे शिप होती है हमारी, पानी के जो जहाज जिसे कहा जाता है, वो रखे जाते हैं. एयरपोर्ट, द प्लेस वेयर एयरप्लेन्स आर लिव, जहाँ पे एयरप्लेन्स हमारे, जहाँ पे एरोप्लेन्स हम रखते हैं वो एयरपोर्ट होता है. ट्रेन्स, रेलवे स्टेशन. सो उसी तरीके से शिप्स जो होती हैं, जो पानी में चलती हैं शिप, उसे हम कहाँ पे रखते हैं? पोर्ट्स में. सम इम्पॉर्टेंट पोर्ट्स ऑफ इंडिया आर कोलकाता पोर्ट, विशाखापट्टनम पोर्ट, चेन्नई पोर्ट, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, एटसेट्रा. दीज आर दी फेमस. ये कुछ फेमस हैं, और भी हैं बहुत सारे, बट दीज आर दी फेमस. ये कुछ फेमस पोर्ट्स हैं. What is the national game of India? I hope you all know very well. What is the national game of our India? The national game of our India is hockey. Name the first Indian in space. This you already learned in your class 3. आपने थर्ड क्लास में भी पढ़ा है कि वो पहला इंसान जो स्पेस में गया हो, बट वो कहाँ का हो? इंडिया का हो. So who is he? राकेश शर्मा. राकेश शर्मा is the person. वो राकेश शर्मा है जो फर्स्ट टाइम स्पेस में गए थे इंडिया की तरफ से. सो द लास्ट क्वेश्चन इज नेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन इन स्पेस. दिस यू ऑल्सो लर्न इन योर क्लास 3. ये भी आपने क्लास 3 में ईवीएस में पढ़ा है. सो द आंसर इज कल्पना चावला. कल्पना चावला इज द वुमन. कल्पना चावला वो वुमेन है जो इंडिया की तरफ से स्पेस में फर्स्ट टाइम गई थी. सो चिल्ड्रन, हियर योर चैप्टर इज ओवर. यहाँ पे आपका चैप्टर खत्म हो जाता है. सो एज अ होमवर्क you have to learn or you have to memorize all these questions. इन सारे questions को आपको याद करना है, as well as you have to write these questions in your notebook. आपको ये सारे के सारे question अपनी कॉपी में भी लिखने हैं. You have to write this. Okay? And once again try to read this chapter and make sure your pronunciation is clear.
If suppose you have any doubt, tomorrow you will ask me, okay, in your class. Thank you, children.